ہم مختلف حلقہ اسمبلی میں اناج کے جو ہماری جانب سے بنائے گئے کٹس ہے اس کی تقسیم کا عمل جاری ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی کو 1000 بیگ دیے تھے اناج کے، راشن کے۔ پھر حلقہ اسمبلی کاروان کو بھی 1000 بیگ دیے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی مہیشورم کے لیے، جس میں شاہین نگر اور دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر بھی قریب 1000 بیگ پہنچائے تھے ہم نے۔ اور پھر امبر پیٹ اپل عثمانیہ یونیورسٹی کے ایریے کے لیے 500 بیگ وہاں بھی ہم نے راشن کے بھیجائے تھے۔ پھر مشیر آباد و گولکھ پور کے لیے بھی 500 بیگ بھیجائے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لالا گڑھا، چلکل گڑھا، وارث گڑھا اور اس علاقے کے لیے بھی 500 بیگ وہاں پہ بھی بھیجائے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی گوشہ محل میں بھی قریب 700 بیگ پہلی مرتبہ بھیجائے تھے۔ پھر بعد میں اور 200-300 اس حساب سے گوشہ محل حلقہ اسمبلی میں بھی 1000 بیگ ہم وہاں پر بھی بھیجائے۔ اور پھر راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں بھی ہم نے قریب 1000 بیگ وہاں پر بھی راشن کے بھیجائے گئے تھے۔ اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے علاوہ ہم نور خان بازار، دارالشفا اور وہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی آج 500 پیکٹس راشن کے بھیج رہے ہیں، اور ایرا گڈھا و صنعت نگر کے لیے بھی 500 بیگس راشن کے پھر آج ہم بھیج رہے ہیں۔ اور بیگم پیٹ کے علاقے کے لیے بھی وہاں پہ 300 راشن کے کٹس ہم بھیج رہے ہیں۔ کنکوٹی اور پردہ گیٹ اور شیر گیٹ کے علاقے جو دوسرے غریب غربا رہتے ہیں، وہاں پر بھی 300 پیکٹس راشن کے ہم آج بھیج رہے ہیں۔ اور رائل کالونی، یہ پہاڑی شریف کا علاقہ دوسرا، قبا کالونی اور پھر دوسرے جو علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہم پھر آج قریب 1000 پیکٹس وہاں پر بھی ہم بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بلا لحاظ مذہب ہم ہر بھوکے کی مدد کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اپو گڑھا کے علاقے میں بھی ہم آج پھر سے 500 پیکٹ بھیج رہے ہیں۔ اور اپو گڑھے کے علاوہ جو مسلم علاقہ نہیں بلکہ غیر مسلم علاقہ یا دوسرے علاقے، ہر علاقوں میں پہنچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جنگم میٹ کا علاقہ ہے، جہاں پہ لمباڑا بستی ہے، دوسرے SC ST کے بستیاں ہیں، وہاں پر بھی ہم آج قریب 300 پیکٹس بھیجیں گے۔ اور بلدی حلقہ چندرائن گٹے میں بھی یہاں کے اطراف میں پٹیل نگر، راجیو گاندھی نگر، یہ دوسرے کے پسماندہ طبقات کے علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہم 200 پیکٹس بھیج رہے ہیں۔ تو اس حساب سے آج قریب 4000 پیکٹس ہم آج ہمارے پاس سے جاری کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے قریب 5000 پیکٹ چندرائن گٹا حلقے سے ہٹ کر ہم نے تقسیم عمل میں لائی ہے۔ اور اس کے ساتھ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اب تک ہم قریب 25000 سے زائد گھروں تک ہمارے راشن کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو آگے بڑھ کر مدد کرنی ہوگی ایک دوسرے کی۔ اور
ये मसला किसी गरीब का या रईस का या अमीर का नहीं है, ये मसला भूखे का है। भूखे के घर तक अनाज को पहुंचाना, ये हमारा मकसद है और हमारा ये मिशन है। और इसके अलावा भी रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग अपने घर के पते और फ़ोन नंबर्स मुझ तक पहुँचा रहे हैं। तो उन लोगों तक भी राशन को पहुँचाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक 25 से 30 टीम्स हैं जो मुसलसल मैसेज और फ़ोन जैसे आता है उन तक ये अनाज को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं मेरे सारे टीम में जो भी लोग हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस हमारे समद बिन अब्दास साहब का, फहाद बिन अब्दास साहब का, हमारे नसीर गयास साहब का, सईद साहब का और हमारे चंद्रायन गुट्टा के कॉरपोरेटर जनाब वहाब साहब का, जो मुसलसल मैं कहूँगा कि 1 महीने से ज़ायद वक्त गुज़र चुका है, जो हमारी ये 5 लोगों की टीम अनाज ख़रीदती है, यहाँ तक लाती है, फिर इसकी पैकिंग होती है। तो 1 महीने से मुसलसल यहाँ पे कैंप करे हुए हैं। मैं उन तमाम का भी काफ़ी ममनून मशकूर हूँ। उसके अलावा भी मैं मेरा अखलाक़ी फ़र्ज़ समझता हूँ कि जितने भी असहाब जिन्होंने ऐसे वक्त में मदद की है, चाहे वो 2 बैग होने दो, चाहे वो 2000 बैग होने दो, चाहे वो 200 होने दो या 20 होने दो, जिन्होंने भी जो मदद की है इस आजमाइश के वक्त में, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी इस खिदमत को कबूल करे। हर किसी ने किया और बिलखुसूस मैं मेरे हलक़े में जनाब हमीद साहब का, जो RR ग्रुप ऑफ कंपनी के ज़िम्मेदार हैं, बानी हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ़ महल्ले जात में और चंद्रायन गुट्टे में दिल खोल कर इमदाद की है, अनाज की तक़सीम अमल में लाई है। ये काबिल मुबारकबाद इक़दाम है। उनके अलावा कई NGOs ने भी काम किया है, कई इनफरादी हैसियत में भी काम किए हैं लोगों ने। तो बहरहाल जिसने भी, किसी ने दिखाकर काम किया है तो किसी ने छुपा कर काम किया है। दिखाकर काम करने वालों का भी शुक्रिया, छुपा कर काम करने वालों का भी शुक्रिया। और मैं फिर से अपील करूँगा सारे लोग, काबिल इस्तिताअत लोग जितने भी हैं, उन सब से कि जो भी जिससे भी जो भी बंद पड़ता है वो करें, और जितना भी करेंगे कम है। इसके साथ ही साथ एक आखिर में ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि ये अनाज की जो तक़सीम मेरी जानिब से, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जो की जा रही है, इस पर सबसे पहला अगर किसी का हक़ है तो वो भूखे का हक़ है। और जिसके पास अनाज है, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास नहीं है, तो मैं ये समझूंगा कि अनाज रख कर नहीं है कहने वाला एक भूखे का हक़ छीन रहा है। तो मेरी अदबन दरख्वास्त है, गुजारिश है उन लोगों से जिनके पास अनाज है, वो बराए मेहरबानी ये अनाज को न लें और लौटा दें ये कहते हुए कि हमारे पास अनाज है, आप दूसरों को दीजिए। क्योंकि हमारे शहर में कई ऐसे इज़्ज़तदार लोग हैं जो ख़तारों में नहीं खड़े हो सकते, जो मांग नहीं सकते, जो फिर कर अनाज जमा नहीं कर सकते, अपनी इज़्ज़त के खातिर वो शर्मिंदा हो जाते हैं, परेशान हैं। तो खुदा रा जिनके पास अनाज है वो ये न समझें कि अकबर साहब के पास से आ रहा है तो हमारा हक़ है। नहीं, अकबर साहब के पास से जो आ रहा है उस पर भूखे का हक़ है, जिसके पास है उसका नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ कि ज़रा इस पर भी गौर करें, क्योंकि वाइट राशन कार्ड जिनके पास है उनको 12 किलो चावल तो कैसे भी मिल रहा है, 2000 रुपये भी मिल रहे हैं,
500 रुपये मरकज़ी हुकूमत, 1500 रियासती हुकूमत की तरफ से। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उन तक इस अनाज को पहुंचाना है हमारा मकसद, कि जिनके पास कोई इमदाद का ज़रिया नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो मैं अपील करता हूं सारे लोगों से कि आप थोड़ा सब्र करें, और रमज़ान का महीना भी आने वाला है, आ रहा है, और हम सबको इस माह रमज़ान में सब्र की तलक़ीन दी गई है। तो हमको सब्र करना होगा, और इस आजमाइश के वक्त में एक दूसरे का साथ देना होगा। और रमज़ान के महीने में भी हमने तय किया है कि हम करीब 3000 लोग का खाना भी हम हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में रोज़ाना पकाएंगे, पैकेटों में डालेंगे और मुख्तलिफ मुकामात पर रोज़ेदारों में तकसीम करेंगे। तो ये भी काम हम कर रहे हैं। बहरहाल जितना हो सकता है हमारी ज़ात से हमने किया है। काम का आगाज़ सबसे पहले जब किया था तो ये सोचकर हमने किया था कि चंद्रायन गुट्टे के हल्का और दूसरे हल्कों में थोड़ा बहुत कुछ तकसीम करेंगे। तो काम का आगाज़ हुआ था 50 लाख से, और फिर बढ़ता गया, 1 करोड़ 25 लाख हुआ, फिर बाद में और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आज 3 करोड़ से ज़ायद हो चुके हैं। मैं कहूँगा कि करीब 3.5 करोड़ रुपया सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैंने खर्च किया है अब तक भूखों तक अनाज को पहुंचाने के लिए। तो हम जितना हो सकता है अपनी जानिब से कर रहे हैं। करीब 60,000 के करीब पैकेट्स अनाज के बनाए हैं, और अभी भी हमारे पास ऐसी प्लानिंग हम करें हैं कि अगर ये लॉकडाउन अगर आगे भी बढ़ता है तो इंशाअल्लाह हमारी जानिब से जितना हो सकता है हम माह रमज़ान के इख्तिताम तक, ईद तक अनाज की तकसीम को जारी रखने की ये कोशिश कर रहे हैं। और अगर अल्लाह राज़ी है और अल्लाह हमसे काम लेना चाहता है तो इंशाअल्लाह हम इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ भूखों तक अनाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अकबर साहब, ये मरकज़ी हुकूमत ने जो है लॉकडाउन का ऐलान किया विदाउट पीरियर नोटिस, फिर उसमें तोसी की नोटिस के बगैर आवाम को अचानक, फिर रियासती हुकूमत ने भी इसमें 7 मई तक तोसी की है। आपकी जानिब से, जमात की जानिब से, जैसा कि आपने बताया कि कई NGOs की जानिब से लोगों की इमदाद की जा रही है, लेकिन लोगों की एक आम शिकायत है कि लॉकडाउन में ये अचानक सख्ती की वजह से जो अनडिक्लेयर कर्फ्यू कर दिया गया है, जो गाड़ियाँ सीज़ की जा रही हैं रमज़ान से पहले, काफ़ी उन्हें दुश्वारियाँ हो रही हैं। कई लोगों को मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं, NGOs की गाड़ियाँ सीज़ की जा रही हैं, उन्हें इमदाद करने नहीं दिया रहा है। एक आम शिकायत ये है कि बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है, मुसीबत के हालात है, ऐसे में ये सख्ती उन्हें जो है बहुत ही नागवार गुजर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सख्ती की जा रही है वो सख्ती आवाम की जान को बचाने के लिए, इस बीमारी से उनको महफूज रखने के लिए की जा रही है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग जो फ्रंट लाइन पर है इस बीमारी के रोकथाम के लिए या इस बीमारी से लड़ने के लिए, जिसमें पुलिस भी है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, ये सारे लोग भी इंसान बशर हैं। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, फिर रात से सुबह तक ये लोग भी बैठे रहते हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके सिचुएशन को कंट्रोल करें। क्योंकि इस बीमारी को रोकने का वाहिद इलाज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, घरों में रहा जाए, इसके ज़रिए ही कर सकते हैं। रहा सवाल कि अचानक ऐलान करना, हाँ, ये एक बहुत सख्त फ़ैसला लिया गया है जिससे आवाम को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि कई अचानक ऐलान करने से घर वालों ने कुछ इंतज़ाम भी नहीं किया है, तो इस ताल्लुक़ से हुकूमत को भी गौर करना चाहिए। एक तरफ़ा बंद कर देने से ही मसले का हल नहीं होगा। लोग परेशान हैं, अनाज नहीं है, भूखे हैं, और उसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट से दवाओं से महरूम हैं, BP के पेशेंट से दवाओं से महरूम हैं, कई दिल के अमराज में मुतासर हैं,
कई अमराज में मुतासर हैं, लोग उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर भी गौर करें, किस तरीके से दवाएं पहुंचाई जा सकती हैं वो भी गौर करना चाहिए। या नहीं तो बस्ती दवाखाने हैं, जिस तरीके से राशन की दुकान से राशन तकसीम किया जा रहा है, मैं रियासती हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि बस्ती दवाखानों के ज़रिए जितने भी गरीब गुरबा हैं जो बीमारियों में मुब्तला है, बस्ती दवाखानों में 1-2 दिन पहले उनके पर्चियों को, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस को जमा करें, 1-8 दिन का वक्त दें, और हो सका अगर तो डोर टू डोर उनके दवाइयाँ उनके घरों तक पहुँचाने का इंतज़ाम करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कई घरों में छोटे मासूम बच्चे हैं जो 6 महीने के, 1 साल, 2 साल, 3 साल के हैं, वो दूध से महरूम हैं। हुकूमत को चाहिए कि डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए इतना दूध रियासत में है, दावे किए जाते हैं कि इतना दूध है हमारे मुल्क में, इतना दूध है हमारे रियासत में, विजय डेयरी है, दूसरे है, कई हैं ऐसे, तो क्यों नहीं इन मासूम गरीब लोग और बच्चे जो दूध के लिए परेशान हैं, उनके दूध का इंतज़ाम क्यों नहीं किया जा सकता? ये काम किया जा सकता है, समझ नहीं आता कि क्यों हुकूमत नहीं कर रही है। करना चाहिए, इन नुकात पे गौर करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी मैंने ये तबसरे देखे हैं और मेरा अपना भी ये तजिया है कि जब भी वज़ीर आज़म टीवी पर आ रहे हैं, आवाम से ताउन तलब कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की दस्तूरी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना दस्ते ताउन गरीबों मजबूरों तक पहुँचाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर आपका क्या तबसरा? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये ऐसा वक्त है कि निकलना है, और हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सदर हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जनाब ट्रम्प साहब, वो रोज़ाना रात में हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से रोज़ाना रात में 2-3 बजे वो मीडिया में आते हैं, प्रेस से मुलाकात करते हैं, सवालात लेते हैं, जवाबात देते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि क्या करने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं समझता हूं कि जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको निकल कर आगे आना पड़ेगा कि आवाम की तकालीफ में, ऐसे वक्त में, आवाम की मुसीबत के वक्त अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, चावल भरा पड़ा है, लेकिन वो तकसीम नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि कितने परेशान हैं, इनको एहसास नहीं है, गरीब की परेशानी का एहसास नहीं है। कई वाक़यात हमने देखे हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आई है कि दूध गिर गया है, एक कोने में कुत्ते दूध पी रहे हैं, तो एक आदमी उस दूध को उठा रहा है। हमारे हलके में भी हमारे लोगों ने, हमने देखा है कि किस तरीके से 2 लोग जो सड़ी हुई तरकारी को जब एक तरकारी फरोश ने एक कोने में फेंक कर चला जाता है, तो एक मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे रुकते हैं और बीवी आगे बढ़ के जाती है और सड़ी हुई तरकारी में से कुछ तरकारी चुन कर लेकर जा रही है। उसकी भूख का ये आलम है। तो ये चीज़ों पे गौर करना चाहिए, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। अब ये वक्त है कि निकलना होगा आगे, और जितने गोदामों में जो कुछ भी है वो बांटना होगा, तकसीम करना होगा गरीबों को, और ये ज़रूरी है। ये रियासती हुकूमत की जानिब से किराएदार मकानदार से मुताल्लिक़ एक पॉलिसी बनाई है 3 महीने का किराया डिफर करने का, लेकिन लोगों का ये ख्याल है कि क्यों नहीं रियासती हुकूमत बरक़ी के बिल्स माफ़ कर रही है, वाटर चार्जेस क्यों नहीं माफ़ कर रही है, इस तरह की रियायतें, टैक्स में क्यों एग्जम्पशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे हालात में रियासती हुकूमत खुद आगे बढ़ के लोगों की क्यों मदद नहीं कर रही? देखिए, रियासती हुकूमत तो कर रही है, और तनकीद बराए तनकीद करना सही नहीं होता है। मैं कहूँगा कि KTR साहब बिलखुसूस मुसलसिल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, KCR साहब भी मीटिंग्स ले रहे हैं, और रियासती हुकूमत की जानिब से वाइट राशन कार्ड होल्डर्स को 1500 रुपये भी दिए गए हैं, और एक नया हॉस्पिटल भी गच्ची बोली के पास भी आ रहा है। इस काम तो हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि और काम करना चाहिए। और ये फैसला कि एक के मुंह से निवाला खींचना और दूसरे के मुंह में निवाला डालने वाला है कि मकान मालिक किराया हासिल ना करें और 3 महीने तक
تو سوال یہ ہے کہ کئی ایسے مکان کے مالکین ہیں جن کا گزر بسر کرائے پہ ہوتا ہے. اگر ان کو کرایہ نہیں ملے گا تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اگر ان سے کرایہ نہیں لینے کی بات کر رہے ہیں آپ، اگر میں مکاندار ہوں تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کرایہ مت لیجئے، ٹھیک ہے میں نہیں لیتا ہوں، تو گورنمنٹ سے پراپرٹی ٹیکس معاف کریے آپ. وہ نہیں کریں گے. اور پھر آپ ایک سیلنگ لگائیے کہ وہ گھر جس کے کرائے 10,000 سے نیچے ہیں، 10,000 سے نیچے ہیں، ان کو ڈیفر کریے آپ. 10,000 کے جو نیچے جو ہیں ان کو دینے کا لزوم بنائیے، اور یا کچھ سہولت نہیں دیجیے، اور اس سے بڑھ کر جو ہیں ان سے بولیے کہ ان سے نہ لیں. لیکن ہر ایک سے یہ کہیں گے کہ کیسے ہوگا کہ آج آپ انڈسٹری آج پوری ٹھپ ہے، پاور کنزمپشن کم ہے، واٹر کنزمپشن کم ہے. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اتنے یونٹس تک بل نہیں لیا جائے گا کسی سے پاور کا، اتنے یونٹس تک پانی کا بل نہیں لیا جائے گا، یہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ارے آپ یہ اعلانات کریے، نہیں ایک ہی کو کرنا ہے. میں سخت مذمت کرتا ہوں اور کہوں گا کہ کئی ایسے پریشان حال مکان مالکین ہیں جن کو کرایہ نہیں مل رہا ہے، اور ایک تصادم کی بات آ گئی ہے مکاندار کرایہ دار میں. کل بھی میرے حلقے میں کچھ 8 یا 10 ایسے جھگڑے ہوئے ہیں اور پولیس کیسز بھی ہوئے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ پھر سے اس پر غور کریں اور ضروری احکامات جس کے ذریعے کرایہ دار بھی خوش ہو، مکاندار بھی خوش ہو، ایسا کچھ فیصلہ لینا چاہیے. ان کے منہ سے نوالا کھینچ کر ان کے منہ میں ڈالنا یہ غلط ہے. ایسا دیکھا جا رہا ہے، میں 1 مہینے سے میرا بھی آبزرویشن ہے، ہمارے ساتھیوں کا بھی آبزرویشن ہے کہ آپ خرابی صحت کے باوجود مسلسل ہاسپٹلس کا دورہ کر رہے ہیں، ریلیف کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ایک ایسے وقت کے میڈیکل فیٹرنیٹی کے لوگ ہی دواخانوں کو جانے سے گھبرا رہے ہیں، آپ دواخانوں کو جا رہے ہیں، یہ ریلیف کر رہے ہیں. آپ کی کیا وجہ ہے کہ آپ کئی اہم جو ہے تنظیموں کے ذمہ دار اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ مسلسل سرگرم عوام کے درمیان ہیں؟ یہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو جو ہے پرووک کر رہی ہیں اس طرح سے؟ دیکھیے میری زندگی جو میں آج جی رہا ہوں، یہ لوگوں کی دعائیں اور بالخصوص میرے مسلمان بھائیوں کی، غریبوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. کہ 9 سال ہونے جا رہے ہیں مجھ پر حادثہ ہو کر. 30 تاریخ کو 9 سال ہوں گے جب میں موت اور زندگی سے لڑتا ہوا. دعاؤں کے نتیجے میں آج بقید حیات ہوں. تو یہ میری زندگی دین ہے ان دعاؤں کی وجہ سے. اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سے، میری ذات سے، میری انفرادیت سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے میری اس عوام کے لیے کرنے کا میں کروں گا، آخری دم تک کروں گا. اتنا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے، کر رہا ہوں. لیکن بحیثیت ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں مجھے عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کے دکھ و تکلیف میں ان کے قریب رہنا ہے، ان کی تکالیف کو دور کرنا ہے. نہیں اگر میں بھی اپنی زندگی کی فکر کرتے ہوئے اگر بیٹھ جاؤں گا تو پھر اتنے بھوکوں کا کیا ہوگا، اتنے دواخانوں کا کیا ہوگا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک دواخانے کے ذمہ دار کی حیثیت سے بیماروں کے علاج کے انتظامات کا بھی جائزہ لینا ہے، اور ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور دوسرے سٹاف جو دلوں میں جن کے خوف ہیں اس خوف کو نکالنا بھی میری ذمہ داری ہے. ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا، ان کی جانوں کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. تو بحیثیت عوامی نمائندے اپنے حلقے کی عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کی بھوک کو بھی کرنا ہے. موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ ہے. جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کوشش کر رہا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ایسے وقت میں ہم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم کو باہر نکل کے عوام کے درمیان میں رہنا ہے. میرا آخری سوال ہے، کیونکہ آپ میڈیکل فیٹرنیٹی سے اتنا کلوزلی وابستہ ہیں اور آپ 2
हॉस्पिटल्स को सुपरवाइज भी करते हैं, आप एमडी हैं मेडिकल कॉलेज के भी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मौजूदा दौर में लॉकडाउन ही मसले का हल है, या रैपिड टेस्टिंग, या फिर जो है टेस्टिंग को जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर करते हुए आइसोलेशन किया जा सकता है? क्या ऐसे तदाबीर इख्तियार किए जा सकते हैं जो मरकज़ी और रियासती हुकूमतें इख्तियार करने से हिचकिचा रही हैं और सिर्फ लॉकडाउन पर ही इक्तफा करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सहूलतें जो मुहैया की गई हैं, या गांधी हॉस्पिटल को एक कोविड हॉस्पिटल की शक्ल दे दी गई है, वहाँ पे कई लोग की बहुत सारी शिकायतें हैं कि डॉक्टर्स नहीं देखते हैं, लेके गए हैं वहाँ पे, बस लेके जाकर डाल दिए हैं, खाना बराबर नहीं दिया जाता, दवाइयाँ बराबर नहीं दी जाती हैं, और सफाई का इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम सही नहीं है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वायरस सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से रोका नहीं जाता, या फिर करीब आने से, मुसाफा करने से, गले लगाने से ही नहीं फैलता है। ये वायरस बाथरूम से भी होता है, और ये वायरस आपके पेट में भी अटैक करता है, आँखों में भी आता है, आँखें भी लाल हो जाती है, जिस्म खुजाता है, इससे भी ये वायरस होता है। तो ये हॉस्पिटल में सफाई का उतना इंतज़ाम नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। और दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा, जिस पर हुकूमत गौर नहीं कर रही है, वो ये है कि देखिए, एक 8 सस्पेक्टेड केसेस आते हैं, फ़र्ज़ करिए कि सस्पेक्ट कहते हैं, उनके स्वाब लेते हैं, टेस्ट के लिए भेजते हैं। 8 लोग को सस्पेक्ट कह रहे हैं और एक ही जगह लेके जाकर डाल देते हैं। रिपोर्ट आने तक वो सस्पेक्ट रहते हैं। एक जगह लेके जाके डालने से अगर 7 लोगों को नेगेटिव आएगा और उसमें एक पॉजिटिव रहेगा, तो वो एक पॉजिटिव की वजह से वो 7 लोगों को भी लग जाता है। तो इस पर वो गौर नहीं कर रहे हैं। और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना, उस पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। लेके जाकर वो चार मीनार दवाखाने में वहाँ पे डाल दिए, वहाँ पे सहूलतें नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरीके से, मुबारकबादी देता हूँ हुकूमत को कि आपने गच्चीबौली पे किया है, ये रियासत का सेक्रेटेरिएट खाली है ना, पूरा सामान निकल गया है, कुछ नहीं है वहाँ पे। सेक्रेटेरिएट में फ़िलहाल आप जो है सो कोविड का हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दीजिए, सेक्रेटेरिएट को क्वारंटीन की जगह बना दीजिए, सेक्रेटेरिएट की कैंटीन को यूज़ करिए। क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं आप उसको? खाली है ना, वो भी उसको यूज़ करिए। कि ऐसा हो गया है कि लोग डर रहे हैं, नहीं ले जाके अगर गांधी में डाल दिए तो कह रहे हैं कि जेल बेहतर है। गांधी में जाना मतलब ये है कि परेशानी ही परेशानी है। तो ये सहूलतों को अच्छे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टेस्ट भी और बढ़ाना चाहिए कि सिर्फ इतने कम टेस्ट से नहीं होगा, हमको टेस्ट भी बढ़ाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जो बीमार लोग हैं, हुकूमत के अहकाम के बाद पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा। अब ये पेशेंट्स कैसे जाएं, ये सवाल है कि पूरे दवाखानों में ओपीज़ को बंद कर दो बोले हैं आप। अरे आप कुछ गाइडलाइंस लाइए, ओपीज़ को, आउट पेशेंट को दोबारा स्टार्ट करिए, और ये हॉस्पिटल्स जितने जो नुकसान में हैं उनको भी जो आरोग्यश्री के ड्यूज़ हैं उसको क्लियर करिए। आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, और जितने भी प्रोटेक्टिव गेयर है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करिए। तो ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हालात अगर बद से बदतरीन होते हैं, ख़राब होते हैं और केसेस का इजाफा होता है, तो ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्सिंग टीम और दूसरी टीम भी तैयार है। हम भी हमारी तरफ से जो भी इक़दाम करना है जानों को बचाने के लिए, हमने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। और मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में किसी ने भी इतनी गैर मामूली तैयारी नहीं की जितनी तैयारी ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हमने की है। हम इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। जब भी हुकूमत की जानिब से पेशकश किया जाएगा कि आप भी अपना ताउन करें, तो हम अपना मुकम्मल ताउन देने के लिए तैयार हैं। बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए माह रमज़ान का आगाज़ भी होने जा रहा है, तो मैं आवाम से और बिलखुसूस नौजवानों से अपील करता हूँ
کہ وہ گھروں میں رہیں, گھروں میں عبادت کریں, اور یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا کہ اللہ کا جلال ہے یا اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کا غصہ ہے جو اس طریقے سے آیا ہے کہ ساری دنیا تھم گئی ہے, رک گئی ہے. تو ہم کو اس ماہ رمضان کے اپنے روزوں کے ذریعے, اپنی عبادتوں کے ذریعے, اپنی قرآن خوانی کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا اور اللہ سے دعا کرنا ہوگا کہ اللہ یہ حالات کا اختتام کرے اور ان جو مشکلات سے گزر رہا ہے ہر انسان اس کو ختم کرے اور یہ وائرس کو ختم کرے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے, اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں راتوں میں ادھر ادھر مت گھومیے. آپ اگر گھومیں گے اور بیماری کو لے کر گھر میں آئیں گے تو آپ کی وجہ سے گھر کے بزرگوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا, کیونکہ بوڑھے جسم کمزور ہوتے ہیں اور جلدی یہ وائرس ان کو اٹیک کرتا ہے. تو میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ باہر گھومنا پھرنا ذرا کم کریں اور عبادتوں پہ توجہ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. میں ہر کسی سے کہوں گا کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں اپنا روزہ کھولنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو پہلے اپنے پڑوسی کا روزہ کھلاؤ, پڑوسی کی بھوک مٹاؤ, اس کے بعد اپنا روزہ کھولو. یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر ایک سے. امید کروں گا کہ ہر کوئی, میرا ہر مسلمان بھائی اس بات پہ عمل کرے گا کہ اگر آپ کا پڑوسی اگر ہندو بھی ہے اور وہ بھوکا ہے تو اس کو پہلے کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد اپنا روزہ کھولو. ہم کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر لڑیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے اور اس بیماری کو ختم کریں گے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف مہینے 2 مہینے کا نہیں ہے. بیماری پہ قابو پایا جا سکے گا لیکن اس کے بعد جو مصائب و مشکلات آنے والے ہیں کسی کو خواب و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا حالات آنے والے ہیں. نہیں معلوم کتنے انڈسٹریز بند ہو جائیں گے, نہیں معلوم کہ کتنوں کی نوکریاں چلے جائیں گی, نہیں معلوم کہ کتنے بے روزگار ہو جائیں گے, نہیں معلوم کہ کتنے گھروں میں آ جائیں گے. بہت سے مسائل ہونے والے ہیں. صبر کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ وقت ہے کفایت شاری کا. ہر وقت اگر آپ 1 روپیہ خرچتے تھے, اگر اب 20-25 پیسے میں اگر کام نکل جاتا ہے تو کام نکالیے, 75 پیسے کو بچانے کا وقت ہے, کیونکہ نہیں معلوم کہ حالات کیسے ہونے والے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی نوکریاں جا رہی ہیں, کئی نیوز چینلز میں دیکھ رہے ہیں, اخبارات میں دیکھ رہے ہیں, دواخانوں میں دیکھ رہے ہیں, انڈسٹریز میں دیکھ رہے ہیں کہ نکالتے جا رہے ہیں نوکریوں کو. تو یہ وقت بہت نازک ہے, نہ صرف اب بلکہ آنے والے 6 مہینے بھی ہمارے ملک کے لیے, ہماری ریاست کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے اور ہمارے ملک, ریاست و شہر میں بسنے والے ہر فرد کے لیے آزمائش کا وقت ہے. تو ہم کو تیار ہونا ہے. اب تو اس وائرس سے لڑنا ہے, یہ وائرس ختم ہونے کے بعد جینے کے لیے, روزی روٹی کے لیے لڑنا پڑے گا. تو اس کے لیے بھی ہم کو تیار ہونا ہوگا. تو میں اپیل کروں گا کہ یہ وقت ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا, صبر کے ساتھ رہنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا.